ایک شخص کو جھکانے کے لیے اسے دھمکایا گیا کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تمہارا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا، معافی مانگ لو اور جھک جاؤ۔ اسے ہر طرف سے ڈرایا گیا، کہا گیا کہ تمہارے اپنے تم سے غداری کر گئے ہیں، تمہیں اکیلا چھوڑ گئے ہیں، عدالتوں کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے گئے ہیں، کوئی جج تمہارا کیس نہیں سنے گا، تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے، تمہیں سزا دی جائے گی، تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ مگر تمام تر دھمکیوں، دباؤ، قید اور اذیتوں کے باوجود وہ شخص نہیں جھکا۔ اسے موت کے قریب پہنچایا گیا، اس کی صحت بگاڑ دی گئی، ہر ممکن طریقے سے دباؤ ڈالا گیا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا، مجھے موت قبول ہے لیکن ظلم کے آگے سر جھکانا قبول نہیں۔ یہ صرف ایک شخص کی مزاحمت نہیں بلکہ عزم، حوصلے، استقامت اور آزادی فکر کی ایک مثال ہے، اور اس شخص کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان کے مطابق ویری گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسپیشل جو شکریہ ہے ان بزرگوں کا ہے، ان ماؤں کا ہے، ان بہنوں بیٹیوں کا ہے جو اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، جو میرے ویٹرنز ہیں، جو میرے پیٹرنز ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک ان کو قائم دائم رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، بہت بری طرح تنقید کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ، کیونکہ ان سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج ہے جی 19 اگست 2026، ساون بھی ختم ہو گیا، لیکن اس وقت راولپنڈی میں جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تو موسلا دھار بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے، شاید آپ تک آواز بھی آ رہی ہو۔ اور آج دن ہے بدھ کا، ہم جو ہے وہ جائزہ لیں گے، کیونکہ ایک خبر نے ڈومینیٹ کر رکھا ہے پاکستان کو، پاکستان کے سوشل میڈیا کو، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، اگر فائنینشل ٹائمز ہو، بلومبرگ ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، جتنے بھی الجزیرہ ہو، جتنے بھی اخبارات ہیں، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو سپریم کورٹ نے کیا یا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ امریکہ سے ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ جو ہے وہ پاکستانی افق پہ عمران خان چھائے ہوئے ہیں، اور کوئی اور خبر، جتنی بھی خبریں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دب گئی ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا اور اس کے جو ثمرات ہیں، جو اثرات ہیں، وہ نچلی سطح تک آ رہے ہیں، عوام کو دھڑا دھڑ فائدہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی حافظ نعیم صاحب سے ملے یا ان کے ساتھیوں سے تو منت کرے ان کی کہ وہ دھرنا ختم کر دیں، ملتوی کر دیں، ورنہ جو ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جو امریکہ، ایران، اسرائیل، عمان، سعودیہ، قطر، یہ جو کانفلکٹ ہے نا، یہ جاری رہے، یہ جاری رہے، اور ہم اپنی تجوریاں جو ہے وہ بھرتے رہیں۔ کیونکہ جنگ سے پہلے کیا حالات 258 کا جو ہے نا وہ پیٹرول تھا، لیوی زبردست تھی، لیکن اب 300 500 تک گیا، پھر اب 300 320 316 پہ فلوٹ کر رہا ہے۔ ان کی تجوریاں جو ہے وہ بھری جا رہی ہیں اور عوام پر جو ہے وہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم مزید کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں نے آپ کو اکثر کہا ہے، آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ آپ کو خبریں دینے والا چینل نہیں ہے، یہ ان کا جائزہ لیتا ہے، یہ ماضی کا جائزہ لیتا ہے، یہ جو ہے نا وہ حال کا جائزہ لیتا ہے، اور پھر مستقبل کی پریڈکشن کرتا ہے کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اگر ہمارے یہی لچھن رہے۔ اب دیکھیں نا، 79 جو ہے وہ ہمارا آزادی کا دن گزر گیا، 79۔ اب اس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں چین کو،
इसके साथ आप कंपेयर करें इंडिया को, एक ही रात थी, एक ही दफा ऐलान हुआ जो है ना वो बंटवारे का। फिर आप इसके साथ कंपेयर करें जनूबी कोरिया को, इसके साथ आप कंपेयर करें मलेशिया को। उन ममालिक की सूरत हाल देखें और पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, जहां पे यानी इतना जो है वो कहत है कि एक कैदी को अदालत सहूलत देती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और फैमिली अखराजात उठाएगी। फैमिली, सरकार पे बोझ नहीं है हस्बे मामूल वो बंदा। तो हर तरफ कहीं पे मिठाइयां, कहीं कपड़े फाड़ दिए गए, कहीं बालों में खाक डाल दी गई, कहीं सिंपल सी बात है। मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था कि अब गजवा का मुझे नहीं पता कि कौन सा गजवा था। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जो है ना वो मुसलमान नहीं हुए थे। बहुत सारे कैदियों के साथ हजरत अब्बास भी जो है वो कैद होकर आए। रस्सियां बंधी हुई थी। एक नौजवान जो है सहाबी वहां से गुजरता है, वो देखता है और फिर कि आपके रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो थोड़ी रस्सियां ढीली कर देता है हजरत अब्बास की। ये बात ऊपर रिपोर्ट होती है तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या सारे कैदियों की रस्सियां ढीली की या सिर्फ मेरे चचा की? तो साहबी ने बताया कि आपके चचे की। तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तो सबकी ढीली कर दो जाकर, या सबकी जो है ना मेरे चचा की भी उनकी तरह सख्त कर दो। हुकूमत कह रही है जी कि और भी मरीज हैं तो उनका इलाज भी कराना पड़ेगा, तो कराना इलाज। उन्होंने जो जुर्म किया उसकी पादाश में वो जेल में है, वो आपकी निगरानी में है, तो कराना इलाज। अब करा रहे हैं इलाज। पहले महमूद रशीद का, उमर सरफराज चीमा का, या जो लोग जेल से निकल कर आए और 8-8 10-10 दिन जो 2-2 महीने के बाद वो इंतकाल कर गए, तो करा रहे हैं इलाज। आपने तो मौत की फैक्ट्री लगाई हुई है। जुर्म एक अलग, और फिर पूरी दुनिया जानती है कि पीटीआई वालों का क्या जुर्म है। पूरी दुनिया जानती है कि ये एक लेइन इब्ने लेइन जो बैठा है बाजार हुसन में, लाहौर के बाजार हुसन में, नवाज शरीफ नामी, और उसकी डायन बेटी, कल से सुना है कि उसने जो है ना वो बर्तन तोड़े हैं, टक्करें मारी हैं, कपड़े फाड़े हैं। यानी इस फैसले के बाद ये तो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो रहा है। कानून के मुताबिक क्या हो रहा है? अगर आपने कानून के मुताबिक करना है ना, ये आप सुने कि कानून क्या कहता है और दुनिया जो है ना वो किस तरह कानून को और इंसाफ को देखती है, चाहे वो जुर्म ही क्यों ना हो। अब देखें, गैर मामूली रिलीफ इस निजाम के मुर्दापन को जाहिर करने के लिए बस एक टर्म ही काफी है, एक इस्तिलाह ही काफी है, गैर मामूली रिलीफ। आज सुबह जब ट्विटर देखा तो हर तरफ सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के बारे में फैसले की धूम थी। मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जमानत पर रिहा कर दिया है या शायद उनके केसों की अपीलें लगा दी हैं। तभी इतनी खलबली है। जब फैसला देखा तो वो था कि खान साहब को इलाज के लिए कुछ दिन के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ट्रांसफर करने का हुक्म है और उनकी बहन से भी उनको मिलने दिया जाए। ये टोटल ये हुक्म था। इस एक फैसले पर जिसे महज़िब दुनिया बुनियादी इंसानी हक कहती है, हमारे यहां हुकूमती कैंपों में कोहराम और इंसाफी कैंपों में धूम मची हुई है। ये कोहराम और ये धूम हमारी सियासत और हमारे निजाम इंसाफ के मुर्दार होने पर एक और मोहर शब्द कर रहे हैं। हुकूमत का रोना, इंसाफियों का जश्न मनाना, ये साबित कर रहा है कि ये निजाम कोलैप्स कर गया है, ये निजाम जो है वो खत्म हो गया है। मैं जहां ओहायो में स्टेट अस्पताल में काम करता हूं, जहां बहुत से कैदी लाए जाते हैं, आम से आम कैदी को भी जो मेडिकल प्रोटोकॉल और इलाज की सहूलत मिलती है वो इस रिलीफ से कहीं ज्यादा है जो एक साबिक वजीर आजम और कौमी हीरो को दिया गया है।
यानी एक साबिक वजीर आजम और एक कौमी हीरो जो एक इंटरनेशनल शोहरत का हामिल है, उसको 3 साल तक गोशा तन्हाई में रखने, उसकी तमाम पेशियां जेलों में लगवाने, उसको जाती मुआवजे से महरूम करने, उसकी एक आंख की बिनाई मुतासिर होने के बाद अगर आज उसको ये इजाजत मिली है कि वो अपने खर्चे पर एक लोकल अस्पताल से अपना इलाज और अपना चेकअप करवा सकता है, अपनी बहन से हफ्ते में 1 दफा मिल सकता है, तो इस पर इसको रिलीफ समझा जा रहा है। इस पर सियासी हलकों में खलबली मची हुई है। सपोर्टर्स निहाल हैं और मुखालफीन को कब्ज लग गई है। लिफाफा सहाफी इसको गैर मामूली रिलीफ करार देकर कलम से तंज के निश्तर चला रहे हैं। हुकूमत इस तारीखी फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त जमा करवाने जा रही है। कोई इसको एस्टेब्लिशमेंट से डील करार दे रहा है, कोई इसको ढील कह रहा है, कोई कह रहा है कि सूबों के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को डरावा दिया गया है। अलगर्ज ये सब मफरूजे, ये सब अंदाजे और गुमान इस मुल्क में निजाम के मुर्दा होने का खुला ऐलान है और कुछ भी नहीं। इसको कोई रिहाई नहीं मिल गई, उस पर बने 200 मुकदमे खारिज नहीं हो गए, उसकी छीनी हुई सीटें, उसका अवामी मैंडेट और पार्टी निशान वापस नहीं कर दिया गया, उसको वो मिला है जो उसको उसी वक्त मिल जाना चाहिए था जब पहली दफा उसने अपनी आंख में तकलीफ की शिकायत की थी। और उस ताखीर और उस गफलत पर ये अदालत, ये रियासत और ये हुकूमत तारीफ की नहीं बल्कि तजलील, तज़हीक और गालियों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट समेत सारे ये तो इसके हकदार हैं। इस मुर्दा निजाम के गले सड़ेपन का इस बात से अंदाजा लगाएं कि एक आम पाकिस्तानी का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये जजों ने दलाइल सुनकर और हकायक देखकर इंसानी हमदर्दी पर फैसला दिया होगा, बल्कि आज भी बहस ये है कि क्या फौज से डील हो रही है। ये निजाम है, फौज से डील हो रही है। क्या मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को सूबों के मामलों पर चूं चरा करने पर डराया जा रहा है? यानी इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, कोई मानने को तैयार ही नहीं। यानी ये बात कि वाकई अदालत ने इंसाफ किया होगा किसी के ज़हन में नहीं आती, क्योंकि अदालतें 26वीं और 27वीं तरमीमों के बाद कब का अपना काला चोगा उतार कर पटका पहन चुकी हैं, अपना हथौड़ा छोड़कर घुंघरू पहन चुकी हैं। सबको पता है, कोई नहीं मान रहा कि ये मेरिट पे फैसला हुआ है। ये है सिस्टम का असल कोलैप्स कि एक साबिक वजीर आजम और इंटरनेशनल हीरो को 8 मील दूर अस्पताल में अपना इलाज करवाने और अपने खानदान से फकत मिलने के लिए अपना ब्लड प्रेशर शूट करवाना पड़ा और अपनी एक आंख खोनी पड़ी, तब जाकर इस निजाम का जज जागता है और कुछ रिलीफ मिलता है, जिसको ये निजाम गैर मामूली रिलीफ कहता है। ओ जजों, ओ जर्नैलों, ओ वजीरों, जो धो कर लो इस निजाम को तेजाब से और इसके बाद थोड़ा सा खुद भी पी लो ताकि तुम्हारा अंदर साफ हो या इसका सफाया हो जाए कि तुम खुदा की इस धरती पर बस एक बोझ हो और कुछ भी नहीं। ये सारी शराफिया, सारी ये लानती, ये गलीज लोग, ये बोझ हैं, ये बायसे अजाब हैं जो हम पर हुक्मरान हैं, जिन्होंने हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो मोड़ लिया। अब आप अंदाजा करें, कानून का सबसे बड़ा दलाल आजम नजीर तारड़, उसके साथ एहसन भोन, उसके साथ फारूक एच नायक, ये कानून के दलाल हैं, ये काले कोटों के दलाल हैं, जजों के दलाल हैं।
वकीलों के दलाल हैं, सौदे करते हैं, कमीशन लेते हैं। वो कह रहा है कि हम रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में, कि किसी मरीज का प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता। हां, एक मफरूर का, भगोड़े का, करप्ट का, वो बाकिर नजफी से 50 रुपए का स्टाम्प लेकर वो लंदन जा सकता है। बाकिर नजफी को क्या इनाम मिला? ये जंजीर जनी भी करता है मजलिस में ना, मैंने इसको खुद देखा है, हमारे इलाके का है, ये जंजीर जनी भी करता है, यजीद को बड़ा कोसता है और बड़ा रोता है बां बां करके। ये बाकिर नजफी जब मौला का जिक्र है तो बड़ा रोता है। इस बाकिर नजफी ने 50 रुपए के स्टाम्प पे, इमरान कहते रह गए कि इनसे बॉन्ड लें, 7 अरब का बॉन्ड लें, इनसे गारंटी ले, लेकिन अगलों ने कहा कौन सी गारंटी? उसका वजीर आजम नजीर तारड़ कह रहा है, और जिनका लीडर कुत्ते के, बकौल फैसल वाडा, कुत्ते के सैंपल दिखा के बकौल फैसल वाडा कि फैज उम्मीद और हमने घर में रिपोर्टें बनाई, ये उधर KFC में बर्गर खाने और कोक पीने चला गया लंदन में। उसका वजीर आजम नजीर तारड़ कह रहा है कि जी हम रिव्यू में जाएंगे और किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ चीचू की मलिया गया था इलाज करवाने, या कोट राधा किशन गया था इलाज करवाने? ये इस किस्म के लोग हैं, ये इस किस्म के बेशरम बेगैरत लोग हैं। आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं? बहरहाल वो कह रहा है जी कि हम रिव्यू में जाएंगे। जो हदफ है ना जनरल आसिम मुनीर का, वो इमरान खान है। जो मर्जी है हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहते हैं जावेद हाशमी। आप जरा जो है वो मुलाहिजा करें कि जावेद हाशमी जो है उन्होंने क्या कहा है। जावेद हाशमी कहते हैं फौज जो मर्जी कर ले, मजीद जितने मर्जी जाल बिछा ले, जितना मर्जी स्क्रिप्ट बदल ले, एक बात पत्थर पर लकीर की तरह वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान को मजीद किसी भी सूरत में नुकसान पहुंचाया या पहुंचाने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदार फौजी जर्नैल और उसके हवारी होंगे। ये रिलीफ इमरान खान को जेल से निकालना, ये सब एक नया जर्नैली स्क्रिप्ट है, मगर कम वक्त हकीकत ये है कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। और अब ये बात कौम ने घोल कर पी ली है। अवाम अच्छी तरह जानती है इमरान खान जेल जाने से पहले बिल्कुल सेहतमंद थे, उन्हें जर्नैलों ने जबरदस्ती बीमार किया और अब उनकी जिंदगी को मजीद खतरात में डालकर फौज अगर ये समझती है कि इस बीमारी को इमरान खान की जिंदगी पर मोहर बनाकर लगा देंगे तो ये उनकी भूल है। खुदा न खास्ता खान की जिंदगी को मसनूई तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर जर्नैल और फौज हमेशा के लिए खत्म शुद। फिर ये नहीं संभलते, फिर इनका वर्दी में बाहर आना वो महाल हो जाएगा। अभी तक भुट्टो ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, अभी तक भुट्टो की रूह या बदरूह वो इनका पीछा करती है। और इमरान खान के साथ ये हो गया, भुट्टो और इमरान में दिन रात का फर्क है। ये लगता है डायलॉग है, मगर यही सच है। खत्म होने का मतलब खत्म नहीं, बल्कि ताकत का सारा जोम मट्टी में मिल जाएगा। अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया जलील करता है, फिर हर आता जाता इन्हें ठुड्डे मारे करेगा। यानी फौज जो है, फौज भी और जर्नैल भी फिर हमेशा के लिए खत्म शुद। वो अपने पड़ोस में देखे ना यार, कितने सियाने हैं जिनके बारे में ये कहते थे उनके कद छोटे हैं, उनके रंग सावले हैं, उनकी छातियां छोटी हैं। बंगालियों को उन्होंने शटअप कॉल दिए ना फौज को कि चलो बॉर्डरों पे, खबरदार ढाका में कोई मुदाखलत की, ढाका में कोई खड़पैंची की, ढाका में कोई हुकूमतें बनाने और गिराने का काम किया, नसो शाबाश।
और सबसे कम मेरा ख्याल है बांग्लादेश की फौज है, उससे भी कम कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी कम। ये जो 7 लाख की सियासी जमात है, अस्करी सियासी जमात, इसने वो अपने लिए रखी हुई है, अपने जो है ना अल्ले तुल्लों के लिए रखी हुई है। इसी की ताकत पे अयूब खान ने क्या किया, इन्हीं 7 लाख की ताकत पे तो कहते हैं चंद जर्नैल। वो नवाज शरीफ की कुड़ी कहती थी कि 2-3 जर्नैलों को वर्दी के पीछे नहीं छुपने देंगे, ये वर्दी के पीछे नहीं छुपते, ये 7 लाख के पीछे छुपते हैं। कि 7 लाख चीफ जिधर देखता है फौज उधर देखती है। आसिफ नवाज जंजुआ ने कहा था कि मेरी चीची पे 7 लाख फौज देखती है, जिधर मैं चीची करता हूं। तो फौज देखे ना, आम आदमी क्यों देखें? 12 जमात में पास अली चीची थे कि 12 जमात पास इन्हें चीची कर रहे थे, इन्हें देखो, इन्हें क्यों? बाकी PhDs नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, लिटरेचर पढ़ने वाले नहीं है कि मेरी चीची दा छला माई ला लिया, घर जाके शिकायत लावंगी। आपकी चीची की तरफ कौन देखती रहे? और आपकी चीची को तो आराम ही नहीं आता, आपकी चीची में तो खारिश है। आप बलोचिस्तान में, कश्मीर में, KPK में दहशतगर्दी, मनशियात, वो सारा कुछ चल रहा है, पेट्रोल की स्मगलिंग, आप उधर जाते ही नहीं है। आपका काम ही यही है, इधर तस्वीरें बनवाना और जो है ना वो मुलाकातें मारना और सारा कुछ। तो उधर जाके चीची हिलाए ना, BLA की जानिब। लोगों, आपकी जिम्मेदारी है अमन और अमान, आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल जो है वो मुख्तलिफ। राना सनाउल्लाह कहता है जी कि बिल्कुल तस्लीम करते हैं फैसला। तारिक फजल चौधरी कहता है बिल्कुल तस्लीम करते हैं जी फैसला। इसके अलावा जो है ना साद रफीक ट्वीट करता है, ये बड़ा इनकलाबी बनता है। हालांकि पैरागॉन सोसाइटी मारी है जान में, इसके बाप के पास वेस्पोता था, अब इनकी सोसाइटियां हैं। छोटा भाई वजीर भी है फॉर्म 47 का, क्योंकि सारे मुनाफिक हैं। मुनाफिकों की, यहूदियों की, मुर्तदों की, कातलों की ये जो जमात है, ये इकट्ठे हो गए हैं नवाज शरीफ के बैनर तले। तो साद रफीक साहब कहते हैं ठंडी हवा का झोंका है, वो इसको जो है ना वो ये कह रहे हैं। अब तैयबा राजा क्या कहती हैं, ये जो लोग जश्न मना रहे हैं ना, उन पे तैयबा राजा का बड़ा जो है वो खूबसूरत मौकिफ है। वो क्या कहती हैं, तसव्वुर करें इस तैयबा राजा को बालों से पकड़ के लाहौर में शेर जवानों ने घसीटा था। वो क्या कहती हैं, तसव्वुर करें एक ऐसे इंसान का जिसे 3 सालों तक गैर कानूनी तौर पर अंधेरों में कैद रखा गया, जिसकी सेहत रोज बरोज गिरती रही, असल इलाज के बजाय उसकी सेहत की खबर को महज व्हाट्सएप पैगामात तक महदूद कर दिया गया। इस दौरान जो हुआ वो अलग दास्तान है। और फिर 3 साल की शदीद जिद्दोजहद और जानलेवा खतरात के बाद बिलाखिर उसे असल पेशावर डॉक्टरों तक रसाई की इजाजत मिलती है। आपको लगता है कि इंसाफ हो गया? जश्न मनाना बंद करें, कोई वलीमा नहीं हो रहा जो आप मिठाइयां बांट रहे हैं। हद है कि बज़ाहिर समझदार और पढ़े लिखे दिखने वाले लोग भी इस कदर शदीद हमाकत और बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। जिस निजाम ने एक इंसान की जिंदगी और सेहत के साथ सालों खिलवाड़ किया, उसके एक अधूरे और ताखीर से दिए गए बुनियादी हक पर धमाल डालना खुशफहमी और नादानी की इंतहा है। होश के नाखून लें और अपने शऊर का इलाज कराएं। तमगे बांटना बंद करें, दुआ करें। याद रखें, इमरान खान का महफूज और सेहतमंद रहना इस मुल्क की जरूरत है, मुल्क की। ये मैं नहीं कहता कि शख्सियात जो है ना वो नागुज़ीर होती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन जो हालात पाकिस्तान के बना दिए गए हैं, जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो लोग जिस उम्मीद पर जिंदा हैं, लोगों की जो उम्मीद है तो वो इमरान खान है, और उस उम्मीद को इन्होंने तोड़ना है, उस उम्मीद को इन्होंने मायूसी में बदलना है। अब इस फैसले के बाद 2 ग्रुप सामने आते हैं।
एक लाहौरी ग्रुप है और एक पिंडी ग्रुप है। लाहौरी ग्रुप को लीड कर रही है मुख्यमंत्री और उसका बाप इबलीस, और पिंडी ग्रुप को लीड कर रहा है शहबाज शरीफ। यानी लाहौरी ग्रुप ने कल से सर में खाक डाली हुई है, वो कपड़े फाड़ रहे हैं, वो सीने पर 2 हथड़ जो है वो मार रहे हैं। लेकिन जो इधर पिंडी वाला ग्रुप है, जिस तरह मैंने आपको बताया, राना सनाउल्लाह, इसके अलावा जो है ना तारिक फजल चौधरी, वो इसको कह रहे हैं कि बस ठीक है जी, वो इसको नॉर्मल जो है ना वो कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि पहनी हुई हैं जो है ना वो लास्टिक की शलवारें। अगर मामला बेहतर होते हैं, अगर सियासी मामला बेहतर होते हैं, अगर पाकिस्तान के मामला बेहतर होते हैं, सबसे पहले जिस चीज ने उड़ना है वो उड़ना है इनकी शलवारों ने। इन्होंने एक हाथ शलवार पर रखा हुआ है, एक हाथ से ये लड़ नहीं सकते, लिहाजा इस वक्त जो है वो 2 ग्रुप जो है वो सामने आए हुए हैं। समीना पाशा क्या कहती हैं? समीना पाशा कहती हैं कि इज्जत का रास्ता भी था, नून लीग खुले दिल से कबूल करती, वेलकम करती, ऑलरेडी पहले ही इमरान खान को ये सारी सहूलतें मुयस्सर होती कि उनका बड़ा नाम होता, लोग इनकी बड़ी तारीफ करते। लेकिन हो नून लीग और फिर फसायत न करे, गालियां न खाए, हो जाती उमरा की पैदावार और ये काम न करे, और उड़ते तीरों का रुख अपनी तरफ न करे, ये कहां पे लिखा है? यानी ये ग्रेसफुल रास्ता था लेकिन उन्होंने नहीं चुना। अब आरिफ उमीद भट्टी क्या कहते हैं? आरिफ उमीद भट्टी कहते हैं कि क्या क्या साजिश हुई, कब कब हुई, ये अनकरीब पता चलना शुरू हो जाएगा जब इमरान खान अस्पताल में आते हैं और अस्पताल में बोलना शुरू करते हैं, मुलाकातें शुरू करते हैं, जितनी मर्जी पाबंदियां लगाएं। मसलन अब नौरीन न्याजी ने कल मुलाकात की है इमरान खान से, तो उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की। बाहर आकर नौरीन न्याजी ने जो है वो कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था वो परेशान थी, वो खुश नहीं थी, उनके चेहरे पर तशवीश थी। सबने देखा, उनको बाहर निकलते देखा, गाड़ी में बैठे देखा कि वो खुश नहीं थी, हालांकि उनको खुश होना चाहिए था। इसार राना की खबर है कि वो ज़ारों कतार और फूट फूट कर रोती रही इमरान खान को मिलके, और इमरान खान ने गले लगाकर उनको हौसला देते रहे। क्यों? पहले तो ये बहनें मिलती थी तो बाहर आकर क्या कहती थी और उनके चेहरे पे कितना इत्मीनान होता था। सबसे पहले जो फिक्र के आसार नजर आए वो आखिरी मुलाकात में डॉक्टर उज़्मा के चेहरे पर थे। वो खुद डॉक्टर है, वो बंदे को देख के पहचान लेते हैं डॉक्टर के क्या इशू है। सबसे पहले डॉक्टर उज़्मा ने तशवीश का इजहार किया था इमरान को देख के, और फिर उनका भाई है, इकलौता भाई है। तो कल नौरीन न्याजी जो है वो परेशान थी, हालांकि इमरान खान को मिली है, कोई कह रहा है आधा घंटा मुलाकात हुई है, कोई कह रहा है पौन, बहरहाल जितनी भी हुई है मुलाकात हुई है कल, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, उनका चेहरा बता रहा था कि वो इमरान खान को जो है वो किस हाल में जो है ना वो देख कर आई हैं। तो ये कर सकते थे, ग्रेस का मुजाहरा कर सकते थे, लेकिन हो नून लीग और वो करे ग्रेस का मुजाहरा, ये कहीं पे नहीं लिखा, ये कहीं पे हो ही नहीं सकता जी। उसके बाद एक और जो जावेद हाशमी ने, कल मैंने भी तनकीद की कि जज कौन होते हैं ये शर्तें लगाने वाले, असल जो हदफ है वो है इमरान खान। ये बात जजों को समझनी चाहिए। ये फायदा तो हुआ कि इमरान खान का इलाज हो जाएगा, मगर जिन शराइत पर उसे अस्पताल भेजा जा रहा है वो बहुत शर्मनाक है। इसमें कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर ने इमरान खान पर जो जुल्म उठाए हैं वो शायद ही किसी और सियासी कैदी पर हुए हों, मगर ये जश्न मनाने का वक्त नहीं। यकीन से कहता हूं कि अगर इमरान खान को पता चल गया
कि उसे इन शराइत पर अस्पताल भेजा जा रहा है तो वो खुद उठकर वापस जेल चला जाएगा। एक और मजे की बात वो ये कि नौरीन न्यावी ने इमरान खान को कुछ भी नहीं बताया। नौरीन न्यावी ने कहा कि अदालत ने आपकी बीमारी की वजह से आपको अस्पताल शिफ्ट करने का हुक्म दिया है। अगर इमरान को ये जो ईमान की शर्तें बताई हैं जजों ने, इस तरह लेटना है, इस तरह खड़ा होना है, उधर तकिया रखना है, किसी से बात नहीं करनी, मेडिकल रिपोर्ट शेयर नहीं करनी, जितनी जजों ने शर्तें लगाई हैं, अगर ये बताती नौरीन न्यावी तो हो सकता है वो इनकार कर देता कि मैंने जाना ही नहीं है। दरअसल आसिम मुनीर और उसकी फौज फंस चुकी है। मसला तरमीम का है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तरमीम के वादे से भाग रही हैं। इन जमातों की अपनी कोई सियासी कुव्वत नहीं, इन्हें सिर्फ तरमीम पर आमादा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये कहना है जावेद हाशमी का। वो भी अपनी हैसियत जानते हैं, उन्होंने बिल आखिर आमादा हो जाना है। फिर फौज ने 1 मिनट लगाए बगैर इमरान खान पर किया जाने वाला जुल्म बरकरार रखना है। मुकाबला है सिंपल, आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान। बांग्लादेश ने आज ही अपनी फौज को बैरकों में वापस जाने का हुक्म दिया है। जिस तरह मैंने बताया, तमाम कारोबार जब्त कर लिए गए हैं, फौज के तमाम कारोबार बांग्लादेश ने, और फौज को सिर्फ बॉर्डर्स तक महदूद कर दिया गया है। 6 जून 1985 से कह रहा हूं कि हमारी फौज को भी बैरकों में वापस जाना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि इस जुल्म से कौम को निजात इमरान खान ही दिलाएगा। इस इदारे में इस्लाहात लाजमी है। ये जो खुदा बन जाता है ना आर्मी चीफ, जब तक इस इदारे में इस्लाहात नहीं होंगी, जब तक हर कोर कमांडर आर्मी चीफ नहीं होगा, जब तक इख्तियारात बांटे नहीं जाएंगे, मुल्क का यही होता रहेगा। जो जिसको चौथा तारा लगता है वो आके अकल कुल बन जाता है, वो आके खुदा का एजेंट बन जाता है, वो आके खुदा का मुंशी बन जाता है। माज़अल्लाह कि मुझ पर वही उतरती है। अब इतने सूबे बनाओ, अब बल्दियाती इलेक्शन कराओ, अब नाजिम आ गए, अब नैब नाजिम आ गए आपके सामने, अब खवातीन आ गई मखसूस नशिस्तों पे, इन पे वही उतरती हैं। और इनकी टोटल जो खारिश की मियाद है, खारिश की मियाद है 2.5 से 3 साल। अब ये निजाम खुद लाए, आइन से गद्दारी की, आर्टिकल 6 इन पे लगता है, इनके गलों में रस्से डलेंगे, खुद की यह सारा कुछ। अब इससे भी तंग है, इनका कोई इलाज है सिवाय इसके कि इनको बंदा बॉर्डरों पे बंद करे और कमरों में बंद करे। ये क्यों शहरों पे रूट लगवाते हैं जी, कि शहर रूट लगा हुआ है, क्यों? वापडा के चेयरमैन के लिए लगता है, उस्तादों के लिए लगता है। मैं कहता हूं रूट तो उस्तादों के लिए लगना चाहिए कि उस्ताद आ रहा है। ये कौन होते हैं कि इनके लिए रूट लगता है? हारून रशीद साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम लोगों की जो अकल है वो घास चरने गई है, घास चरने। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? काश आदम नजीर तारड़ साहब को कोई समझा सके, काश पत्थर दिल सरकारी अखबार नवीसों को कोई समझा सके। एक अवामी हीरो के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू एक शर्मनाक हरकत है। मुसलसल कैद तन्हाई से पैदा होने वाली जिसकी अदालत ने अक्सरियत को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा है, कल ये लोग रोएंगे और पंजाबी मुहावरे के मुताबिक सर पे हाथ रख कर रोएंगे। दिन सदा एक से नहीं रहते, कल ये हुकूमत नहीं होगी। बराह करम नफरत के बीज न बोएं, कल इसकी फसल काटना मुश्किल होगा। कैसे लोग हैं आपकी कैद तन्हाई में बीमार होने वाले आदमी के इलाज पे भी आपको इतराज है? 80% वोटरों की हमायत रखने वाले इस लीडर को वजीराबाद में कत्ल करने की कोशिश की गई थी। जेल में रहते हुए इसने इलेक्शन जीता तो नतायज बदल दिए गए। मुल्क दहशतगर्दी, भूख, मायूसी और एक और बेयकीनी का शिकार है। अवाम शिकार है, अवाम के मुस्तरद करदा करप्ट लीडर कौम पे मुसल्लत हैं। मुल्क को
मुसालहत की जरूरत है। नफरत और इंतकाम का नतीजा तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। होश की दुआ करो, तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई है? वो नाम निहाद जो 3 दफा का वजीर आजम है, तीनों दफा जर्नैलों की गोद में बैठ के आया, वो आग लगाने के चक्कर में, आपको पता है कि इस मौसम में भी आम भेजे गए हैं? मोदी को पता है, आपको जर्नैलों को पता है कि शरीफ खानदान ने आम भेजे हैं? उधर वो सिंदूर हो रहा है और उधर जो है ना यादगार का इफ्तिताह हो रहा है, शर्माया जा रहा है। आम गए हैं बहरहाल मोदी को पाकिस्तान से। अब पत्नी वो जो कहते हैं हमारी मर्जी के बगैर न कोई चीज आती है न जाती है, उनको पता है या नहीं, बहरहाल आम जाती उमराह से नरेंद्र मोदी को पहुंचे हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।